Good morning, ma'am. Good morning, Vita. How are you all? Morning, ma'am. Good morning, Majid. Good morning, Vita. Good morning, ma'am. Good morning, Harsh. Good morning. I said good morning, Vita. How are you all? I'm fine. I'm good. Very good. Be ready with your history books. We have started with a new chapter now. Yes, ma'am. And we are ready. And the हाँ जी, हम लोगों ने कल कहाँ तक करा था बेटा? How much we had read yesterday, class? ma'am, please, ma'am, I'm telling now. Yes, waiting. Ma'am, please share the PPT. Okay. Let us read from the book first and then the PPT we will do, okay? Okay. Right? Ma'am, I think, ma'am, we were on the ma'am spinning wheel. We were on the We have done the. Yes, ma'am. We have done that. we have done that. Yes, ma'am. Ma'am, yesterday, ma'am, we were discussing about it. Just a second. Let me share the book with you all. No? Can you see the screen, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. See the age of industrialization. Here, in the beginning, they have shown you two pictures. Yesterday, also in the PPT, if you remember, two pictures were shown. Now, one is Down of the Century, March, and Two Step by E.T. Paul. This E.T. Paul was a music company, right, of New York, England, in 1900 century. During that time, during this time, you know, a popular music publisher produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. Now, this dawn of the century, what can you observe in this picture? Can you see something in the picture, class? Ma'am, machines, vacancy. Yes, ma'am. What else you can see? What else do you see over here? Century. Huh? Ma'am, Angel. But I am talking about the pictures. Ma'am, Angel. Huh? Let me see how good your observation is. Ma'am, in between Angel. In between, yes, in between this lady who is standing there. Ma'am, and a bird. ठीक है, और बताओ. अच्छा चलो इसको अगर हम फोकस करते हैं, रुको. Ma'am. हाँ, देखो अब ध्यान से देखो, अब दिख रहा है कुछ? Ma'am, bird also. Ma'am, ma'am, world is changing. Like from the land and to the factory zone. Ma'am, which chapter it is? Very good. और बताओ. This is such a nice thing. Ma'am, like here, हाँ. ma'am, trains are also there. Yes, very good. Buses and cars. हाँ, देखो डाउन ऑफ द And सेंचुरी change of the क्या, world. देखो डाउन ऑफ द सेंचुरी का मतलब क्या होता है? डस्क एंड डाउन हमने पढ़ा है ना?
इंग्लिश में पढ़ा होगा कई बार आपने, डस्क एंड डाउन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है इसका मतलब? Yes. डस्क एंड डाउन का मतलब क्या होता है? Early morning and when the हाँ, sun is setting. क्या चीज? Early morning. हाँ हाँ, व्हाट इज अर्ली मॉर्निंग? Ma'am, It's dawn. डस्क, ma'am, duration. ड्यूरेशन हम, From हाँ morning to evening. हाँ, मॉर्निंग टू, ए वेरी गुड, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये क्या बता रहा है इसमें, इस पिक्चर में, इस उसमें देखो, इसका कैप्शन लिखा है डाउन ऑफ द सेंचुरी, मतलब सेंचुरी के खत्म होते होते क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे लोग। या आप ये देखो, इस पिक्चर में ये जो एंजल है, ये एक व्हील के ऊपर खड़ी हुई है, उस व्हील को विंग्स लगे हुए हैं, राइट? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. दूसरा, बैकग्राउंड में बहुत सारी मशीन्स दिख रही हैं आपको, गाड़ियां दिख रही हैं, Yes, कार्स ma'am. दिख रही हैं, इंजन दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग चीजें दिख रही हैं। Yes, ma'am. ये जो Yes, पिक्चर, ma'am. Yes, ma'am. ये पिक्चर बेसिकली उस टाइम में जो चेंजेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बारे में ये बता रही है। ठीक है, एक प्रोग्रेस के साथ देखो, व्हील का मतलब क्या होता है? जी बेटा, मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं आप? बेटा ये गौरव है। Age of industrialization. नहीं, ये गौरव ने पूछा कि अजीत ने पूछा? अरे भाई, मैम मतलब अजीत ने पूछा, मैम अजीत अजीत। तो कल क्लास में थे भाई। यस, दिस इज चैप्टर नंबर, विच इज दिस चैप्टर नंबर? Ma'am, age of industrialization, ma'am. I Four. don't know the chapter. जी, एज ऑफ, Four. हाँ, Yes, ma'am. 4 chapter. चैप्टर 4, एज ऑफ Ma'am, इंडस्ट्री। 103 page number. यस, 79. बेटा पेज नंबर तो ना दिया इस पे। And One ma'am, zero- 103, ma'am, 79. in my page. बेटा ऐसा है ना, 79 उनकी बुक में होगा जिनकी बुक में चैप्टर 2 नहीं होगा, जिनकी बुक में चैप्टर 2 होगा उनकी बुक में ये 103 पेज पे है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, Ma'am, the Indo nationalist, ma'am, कुछ है, ma'am, second chapter. चलिए ठीक है, अब हम इसका इलस्ट्रेशन। Ma'am, ये excuse बोलो। me, ma'am. हाँ मैम, ये मैम पिक्चर मैम दी क्यों गई थी मैम? बेटा, ये उस टाइम पे, अब ये- जब भी बदलाव होते हैं, आपने देखा होगा जब भी चेंजेस होते हैं तो उनको पिक्चर्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो आप, है ना? वो फेसबुक Yes, पे, ma'am. इंस्टा पे वो चैलेंजेस चलते हैं ना कि 10 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक, 7 इयर्स बैक, देखते हैं नहीं देखते हैं वो सब आप? आर यू Yes, नो अवेयर? मैम. नो मैम मत बोलो प्लीज, सब देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। There मैम is- जैसे हम 2006 में थे और अब हाँ, 2021 में कैसे? 2006 में हम कैसे दिखते थे, तो हम वो क्या लगाते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई नो कि ऐसा कुछ, मतलब लोग टैग कर देते हैं कि भाई अब तुम डालो, कि तुम डालो, इस तरह का बहुत कुछ चीजें होती हैं, चलती रहती हैं। ट्रेंड्स. ट्रेंड्स, एग्जैक्टली ट्रेंड्स होते हैं ये। ठीक है, कभी कोई ट्रेंड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जस्ट टू मार द बोरिंग सिचुएशंस दैट आर देयर। ठीक है, ओके। तो ये जो पिक्चर्स होते हैं, जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स के थ्रू आप किसी भी चीज को बहुत इजीली समझा पाते हो इंसान को। कई बार क्या होता है, शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं, वर्ड्स हमारे पास कम पड़ जाते हैं टू एक्सप्लेन थिंग्स, बट अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो उस पिक्चर से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। समझते हैं नहीं समझते हैं? यस मैम, नाउ इट इज Yes, ma'am. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम. फाइन। तो ये अब एक और पिक्चर भी है इसमें, पहले हम इस पिक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक गॉडेस लाइक फिगर है, वो पिक्चर के सेंटर में है, और वो एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस के नाम पे उसको हमने उसको कोट करा गया है, जिसके हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग है, एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन अ व्हील विद विंग्स। मतलब व्हील जो होती है वो निरंतर प्रगति का प्रतीक होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस का वो सिंबलाइज करता है व्हील, इजंट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो व्हील है और ये जो विंग्स है, ये टाइम को सिंबलाइज कर रहे हैं।
ठीक है। और उसकी जो फ्लाइट है, मतलब ये जो लेडी बनी हुई है, जो एंजल बनी हुई है, इसकी फ्लाइट मतलब ये जो व्हील पे पंख लगे हुए हैं, ये शी इज मार्चिंग, शी इज गोइंग इनटू द फ्यूचर। अब वो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या चीज है कि भाई वो अपने पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी है उसके पीछे दिख रही हैं जो कि साइंस ऑफ प्रोग्रेस है। रेलवेज दिख रहे हैं, कैमरा दिख रहा है, मशीन्स दिख रही है, प्रिंटिंग प्रेस दिख रही है, फैक्ट्री दिख रही है। तो ये जब इंडस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ एग्जैक्टली जब नई टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया गया, जब वो एग्जिस्टेंस में आई, तो किस तरीके से चीजों में बदलाव आए। आप देखो कैमरा, आज की डेट में कैमरा जो है आप अपने हाथ में लेके चलते हो। मोबाइल्स में, एंड्रॉइड फोन्स में इतनी इतनी हाई टेक्नोलॉजी कैमराज आ गए हैं कि जो कि आप नॉर्मल कैमरा जो कि पहले हम जो स्टिल कैमराज या जो हैवी कैमराज को जब हम उठा के चला करते थे, है ना, तो ये सब चीजें अब उस टाइम पे मतलब ये अगर आप कंपेयर करो कि तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में, यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। कैमरास को ही देख लो, अपने अपने कंप्यूटर्स को आप देख लो। कंप्यूटर्स पहले बड़े बड़े रखे जाते थे, कैलकुलेशंस वाले। धीरे 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 उसकी फॉर्म जो है छोटी होती गई। आज की डेट में पाम लैपटॉप्स भी आने लगे हैं। आप ये देखो, लोग पाम लैपटॉप्स के बारे में सुना है ना आपने? यस मैम। तो पाम लैपटॉप्स भी आ गए हैं, जिस विच शोज की कितना ज्यादा जो है कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस हो रहा है, राइट? मैं पहले कैमरे के लिए 9 9 घंटे बैठते थे एक पोज बनाकर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब 1 सेकंड में खिंच सकती है। Ma'am, now there is no need of laptop. Everything is in our mobile. एग्जैक्टली अब आज की डेट में आप देखो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि बहुत सारी चीजों को जो है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। जैसे आई टेल यू वन थिंग, यू नो, लॉन्ग टाइम बैक, समवेयर 25 years back, 20 years back, one of my very good friend told me that उस टाइम पे मोबाइल्स नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ही टोल्ड मी कि देखना टाइम आएगा when people will see ads in the mobiles. तो I looked at him like like कि तुम ये क्या अजीब सी वियर्ड सी बात कर रहे हो कि मोबाइल्स पे ऐड कहाँ से आ सकती है टाइप ना, कि भाई मोबाइल जैसी चीज जो अब आज की डेट में इतना मतलब चल भी नहीं रहा है, अब तब इंट्रोड्यूस हुआ था बरेली में, आई थिंक काफी मतलब जब भी आया है। तो उस टाइम पे ही टोल्ड मी दैट। तो आई वाज लाइक कुछ भी मतलब ऐसे ही कह देते हो, बस मुंह से निकलना चाहिए कोई बात। तो ही वाज लाइक नहीं तुम देखना, और जिस दिन बोली जब तुम देखोगी तुम यू विल रिकॉल कि भाई मैंने क्या बोला था। तो मैंने कहा ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी भी चीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अगर उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है तो यू कैन इजीली मेक आउट कि भाई फ्यूचर उसका और क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते हैं। यस क्लास मैम। है ना? Yes, ma'am. यस मैम। आज की डेट में जब हम मोबाइल, मतलब आज तो नहीं, खैर काफी टाइम से मोबाइल में एड्स आ रही हैं। आप फेसबुक देखो, आप इंस्टा देखो, आप यूट्यूब देखो, आप गूगल देखो, मतलब आपको हर जगह पे एड्स दिखती हैं। तो देन माय फ्रेंड टोल्ड मी, देखो मैंने कहा था ना कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो है मोबाइल में अपने हाथों में जो है यू विल बी एबल टू सी एड्स एंड एवरीथिंग। आप देखो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डू वी गो एनीवेयर फॉर दैट? वी आर सिटिंग एट होम लुकिंग इनटू द मोबाइल स्क्रीन्स, स्क्रॉलिंग इट अप डाउन, और फिर आराम से जो हमें चीज चाहिए वी आर ऑर्डरिंग इट। तो ये टेक्नोलॉजी तो है, एडवांसमेंट ही तो है ये, यस मैम। राइट? ठीक है। तो वो ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, ये जो पेंटिंग है, ये बेसिकली आपको बता रही है कि किस तरीके से टाइम्स वर चेंजिंग और कैसे एक प्रोग्रेसिव पाथ पे दैट लेडी इज मूविंग अहेड विद द हेल्प ऑफ द विंग्स एंड द व्हील, राइट? यस मैम। हम ये कहते हैं ना समय का पहिया घूमता है, तो पहिया जो है, व्हील जो है, वो टाइम को सिंबलाइज करता है, राइट? एक यस मैम। हाँ चलिए ठीक है। यस मैम। देन ये कहता है कि this glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. कह रहा है आज से 100 साल पहले एक ट्रेड मैगजीन आई थी जिसपे कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया था। अब उस पिक्चर में अगर आप देखो तो 2 मैजिशियंस दिखाए गए हैं। कैन यू, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इसको, तो क्या आप बता सकते हो ये 2 मैजिशियंस क्या, ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? Can you tell? क्लास? मैम बस देख रही थी। हाँ देख लो देख लो।
Ma'am, it is again showing ma'am technology, ma'am, advancement of human being. Like ma'am, there are ma'am bridges Ma'am, one and magician boats. is showing anything and one magician is showing about the railway tracks Ma'am, buildings, and building. Ma'am, one magician is showing ma'am that building. bridges, railway track, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब ये जो दो हाँ वेरी गुड। अब ये जो दो मैजिशियंस दिखाए हैं इन लोगों ने, इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है। कैसे एक्सप्लेन करा है ये देखो। It shows two magicians. The one at the top is Aladdin from the Orient, who built a beautiful palace with his magic lamp. कह रहा है कि अलादीन के बारे में हम सबने स्टोरीज पढ़ी हुई है, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसका बचपन अलादीन की कहानियां जिसने ना सुनी हो। और आप लोग ऐसे एरा में पैदा हुए हो जब अलादीन को ड्रामेटाइज भी कर दिया गया था। बहुत सारे शोज बने अलादीन के ऊपर, बहुत सारी एनिमेशंस बनी है ना, बनी है नहीं बनी है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम सबने शायद देखी होंगी, हम सबने शायद देखी होंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अलादीन क्यों फेमस था, क्या मतलब जादुई चिराग उसका क्यों, क्या खासियत थी उस जादुई चिराग की, कैन यू टेल? मैम वो 3 विशेष पूरी करता है। yes ma'am. फिर हम 3 विशेष को छोड़ देते हैं, पर आप हमें बताओ कि जादुई चिराग क्या करता था, मैजिक लैंप उसका क्या करता था? मैम अगर उसमें हम हाथ है लगाते थे तो मैम वो विश पूरी करता था मैम, आके मैम बाहर। हाँ बिल्कुल, उसने दिखाया है कि जो दो मैजिशियंस हैं उसमें एक मैजिशियन ऐसा है जो कि अलादीन को वो कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है। अलादीन एक वो कैरेक्टर था जो कि अपने मैजिक लैम्प से, अपने जादुई चिराग से सुंदर सुंदर भवन खड़े कर देता था, पैलेसेस खड़े कर देता था, ठीक है। एशिया, मुझे लगता है कि शायद एशिया में, एशियन कंट्रीज में अलादीन का बहुत जबरदस्त क्रेज रहा होगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज में ही इसकी स्टोरीज बहुत फेमस है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों के बारे में, तो अलादीन वाज क्वाइट फेमस इन द मैम वो एशियन। सही में था? बेटा एक नहीं, यस मैम, सेम क्वेश्चन। नहीं, हमने तो नहीं लगता कि बेटा सही में होगा। इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। जानते हैं जिस समय पे ये स्टोरीज जिस समय पे ये कहानियां बनना शुरू हुई, उस टाइम के बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आज भी बच्चा जिनको जीता है, आज भी उसको लगता है कि कुछ इस तरीके का है या हो सकता है। बचपन में आप लोगों ने बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी होंगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? यस मैम। स्नो वाइट हो गया, फिर आपका वो कौन सी थी, एक रुपेंजल हो गई, फिर आपकी वो सिंड्रेला। हाँ जी बताओ। हम बॉयज हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों ने भी पढ़ी है ये कहानियां। तो आपने वो ड्वार्फ, द स्लीपिंग ब्यूटी एंड द 7 ड्वार्फ्स के बारे में पढ़ा होगा। लड़का लड़की वाला कोई चीज नहीं होता है। फेरी टेल्स जो होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएं बच्चों को सबको पढ़ाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मैंने हाँ। ये सब मैम डोरेमोन में देखा है। आपने डोरेमोन में देखा है ना, क्योंकि आपके टाइम में किताबों पे ज्यादा फोकस था ही नहीं, हम लोग के टाइम पे ये सब चीजें। यस मैम, मैंने भी पढ़ी है। मैम वो मूवियों में चले जाता है मैम, उस पे एक गैजेट होता है जिसके अंदर हम लोग मतलब एक बुक होती है, उसके अंदर मूवीज में चले जाते हैं। टाइम मशीन है ना? यस मैम एक बुक होती है, मैम आल्सो नो। नीचे तो उस पे जंप करते हैं तो वो अंदर ही चले जाते हैं स्टोरी में। तो एक लड़की की जूता कहीं खो जाता है, फिर वो उसको ढूंढ के लाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये वो सिंड्रेला वाली कहानी है, जानते हैं? बहुत सारे जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने हमारे आसपास, आज की डेट में पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, बट हम लोग के टाइम पे हमने ये देखा कि हम लोगों को फेरी टेल्स पढ़ाई जाती थी, हमको कहानियां सुनाई जाती थी, हमको मॉरल स्टोरी सुनाई जाती थी, जातक कथाएं, पंचतंत्रा, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अरेबियन नाइट्स, मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा तो फोकस नहीं था ना, इतने सारे चैनल हुआ करते थे व्हेन वी वर किड्स। हम लोगों ने एक अलग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया थ्रू दी बुक्स, थ्रू दी स्टोरीज। अगर आपको याद हो, नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जब प्रिंट कल्चर आया, मतलब जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और जब प्रिंट कल्चर आया, जब किताबें छपना शुरू हुई, कहानियां लिखने लोगों ने शुरू करा, तो लोगों ने जैसे आप लोगों ने नैन्सी ड्रू के बारे में पढ़ा होगा, मिस्टीरियस, वो एक हार्डी बॉयज, कभी नॉवेल्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्लास, हैव यू हर्ड ऑफ दीज नॉवेल्स? हार्डी No, नो मैम। नैन्सी ड्रू, अरे अभी तो मुझे अक्षत बोला मैम आई एम वी आर बॉयज, तो बॉयज तो हार्डी बॉयज तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा जिसने पढ़ी ना हो। चलो व्हाटएवर इट इज,
मैम हम मार्वल मैम की मिस्ट्री बॉक्स मैम हम पढ़ा मार्वल की पढ़ते हैं। मार्वल की स्टोरीज। ओके ओके गॉट इट। तो ऐसे तो एवेंजर्स हो गए, मार्वल हो गया, फिर आपका अगर हम इस तरीके की उसकी बात करते हैं तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल इमेजिनरी कैरेक्टर्स, इमेजिनरी स्टोरीज होती है ना? होती है नहीं होती है? यस मैम। सो व्हाट आई एम टॉकिंग यस अबाउट, मैम। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। जो चीज हम लोगों ने किताबों में पढ़ी, आप लोग उसका पिक्टोरियल वर्जन देख रहे हो, आप उसको टीवी वगैरह में देख रहे हो, उसका नेक्स्ट वर्जन देख यस रहे हो। मैम। ठीक है? तो जब हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़े तो ऐसा ऐसा माना जाता था, और कई बार हमने भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम कोई कॉमिक पढ़ रहे होते थे, बहुत थ्रिलिंग या मिस्टीरियस या कोई सस्पेंस थ्रिलर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हम इतना ज्यादा लॉस्ट हो जाते थे कि हम अपने आप को वो कैरेक्टर का, हम उसको अपने आप को स्टोरी का पार्ट समझने लगते थे। इतना ज्यादा हम डेप्थ में हम चले जाते थे। जैसे आप मूवीज देखते हो, जब अभी तो खैर नहीं, अब तो आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, जब आप छोटे रहे होगे, जब आप मूवीज देखते थे, फैंटेसी मूवीज या क्रिश वाली जो हो गई है ना, क्रिश हुई, फिर उस टाइम पे जो भी सुपर हीरोज की जो मूवीज आती हैं, उन मूवीज को देख के आपने भी कभी इमेजिन करा होगा कि मैं भी ऐसा करूंगा या मैं भी ऐसा करूंगी, मैं मैं भी बताता ऐसा हूँ, कर, है ना? मैं हाँ बताता हूँ। शक्तिमान। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लगता होगा ना? तो ये जो नई टेक्नोलॉजी या जो प्रिंट कल्चर आया या जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसकी वजह से इसके बोथ साइड इम्पैक्ट्स थी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि लोगों के अंदर बहुत कुछ अच्छा करने का वो हुआ। दूसरा, लोगों को एक स्कोप मिला, लोगों को एक विजन मिला कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उससे हटके भी हम कुछ बेटर कर सकते हैं। ठीक है? आपको आपको विजन जब मिलता है किसी चीज का, तो आप कि जो वो हम कहते हैं ना, एक हिंदी में एक वर्ड यूज होता है, अरे बड़ा प्यारा सा शब्द है, नॉट गेटिंग इट, चलो याद आएगा तो बता देंगे। तो टेक्नोलॉजी से ऑब्वियस सी बात है कि हमारा विजन क्लियर होता है, हमको नए आइडियाज मिलते हैं, पर हम उन आइडियाज को किस तरीके से यूज करें। जैसे आज की डेट में आप देखो, अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, या हम जो हमारे जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें, अगर हम देखो, हमने साइड बाय साइड ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज को ढूंढा है, नहीं ढूंढा है? ताकि ऐसा ना हो कि भाई हमारे एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, वो खत्म हो जाएं, और एक सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी आए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम फिर वही एंशिएंट एरा में चले जाएं, वो अर्ली मैन के एज में। तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना? चाहेंगे क्या? नो मैम। है ना? नो मैम। हाँ ओके, चलिए। तो कह रहा है कि इट शोज टू मैजिशियंस, द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट, who built a beautiful palace with his magic lamp. The one at the bottom is the modern mechanic who, with his modern tools, weaves a new magic, builds bridges, ships, stars and high rising buildings. कह रहा है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट, मतलब ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अलादीन, कि पहले ऐसा हो सकता होगा। बट जो ये नीचे का पिक्चर का जो बंदा है, जो मैकेनिक है, वो वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आज के समय को बता रहा है कि आज कैसे समय पहले के कंपैरिजन में बदल गया है। राइट? राइट यस मैम। यस मैम। यस वेरी गुड। कैन वी हैव भूमिका रीडिंग? हाँ बेटा, भूमिका रीड। From where? These images. These images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships. The history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. These images and associations have now एक्सक्यूज become मी मैम। part of popular imagination. Do you not? एक्सक्यूज मी मैम। बेटा वेट, हाँ बोलो 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 हर्ष। मैम ये जो मैम सेकंड वाला जो मैम दे रखा है इसमें, वो भी मैम मैजिशियन ही है।
क्योंकि मैम वो तो मैं अपने मैकेनिक है, टूल यूज वो करके मैकेनिक कर है रहा है। मैकेनिक, ओके बेटा, वो मैकेनिक, उसको मैकेनिक बताया है, ठीक है। ओके मैम, ओके। कैरी ऑन, कैरी ऑन। Do you not see rapid industrialization as a time of progress and modernity? Do you not think that the spread of railways and factories and construction of high-rise buildings and bridges is a sign of society's development? How have these images developed and how do we relate to these ideas? Industrialization, always based on rapid technological development, can we today continue to glorify continuous mechanisms of all work? Ma'am, please scroll. Yes, स्क्रॉलिंग बेटा। Yes. What has industrialization meant to people's lives? To answer such questions, we need to turn to the history of industrializations. In this chapter, we will look at the history by focusing first on Britain, the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial changes was conditioned by colonial rule. Fine. Anything regarding in this you need to ask? मैम हाँ, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्निटी एंड मैम ईस्ट मैम व्हाई दिस मैम डायरेक्शंस आर गिवन? अच्छा आप मुझे बताओ, आप ये बहुत, मैं आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछने वाली थी अभी, आप जानते हैं मैं एग्जैक्टली यही पूछती अगर आप नहीं पूछते तो। मैम मैं बता दूं? बताओ 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 मैम बताओ। क्योंकि वेस्टर्न में ज्यादा सबसे पहले चेंज आया था और ईस्टर्न में बाद में। हाँ, वेरी गुड। ईस्ट जो था उसको, ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं आपका? एशिया वगैरह ईस्ट का पार्ट बनता है ना, यस मैम। है ना? तो ईस्ट को Yes, हमेशा, ma'am. ईस्ट को हमेशा जो है ओल्ड और अनसिविलाइज माना जाता है, और वेस्ट हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर हम बोलते हैं ना। यस मैम, यस मैम। तो वेस्ट इज, लाइक वेस्टर्न लैंग्वेज। यस यस यस, वेस्टर्न ड्रेसेस, मॉडर्न मतलब मॉडर्न, वेस्टर्न मतलब मॉडर्न हो गया, ठीक है। इसका यही मतलब है यहाँ पे। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलिए, एनीथिंग एल्स? नो मैम। Shall we जैसे continue? गांधी जी all is कहते थे clear. ना, वेस्टर्न लैंग्वेज लानी चाहिए। जी जी जी, जैसे गांधी जी कहते थे कि वेस्टर्न लैंग्वेज लानी चाहिए इंडिया में। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हमें प्रोग्रेसिव उस पे अहेड होना है तो हमें अपने चीजें तो हमें रखनी है, उसके साथ में हमें जो है वेस्टर्न कल्चर को इस तरीके से लेना है कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको हम ना खोएं, ठीक है। यस मैम। Yes मैम। चलो, Yes, ma'am. ओके, कैरी ऑन। नाउ बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कल हमने आपको बताया था ना कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एज आने से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो किया जाता था, और इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था वो चीज भी हमने आपको बताई थी ना क्लास। Yes, ma'am. यस मैम। हम वही पढ़ेंगे, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। सो कैन वी हैव हर्ष रीडिंग? Yes मैम। Before the Industrial Revolution, all too often we associate industrialization with the growth of factory industries. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial workers, we mean factory workers. Histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. There is a problem with such ideas even before factories began to dot the landscape in England and Europe. अच्छा, There was a wait large scale. if I talk about industrialization, name the country, name the place where industrialization first happened. ब्रिटेन। इंग्लैंड, England. इंग्लैंड में, ठीक है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ये, है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
कैरी ऑन बेटा। There was a large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refers to this phase of industrialization as proto-industrialization. In the 17th and 18th century, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to the peasants, artisans, persuading them to produce for international market. With the expansion of world trade and Acquisition. acquisition of acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. But merchants could not expand production within the towns. This was because here urban crafts and trade guilds Yes. were powerful. These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of the new people into the trade. The rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific production. It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns. So they turned to the countryside. In the countryside, poor Okay, wait, peasants and wait, Harsh, artisans. wait. Can we have Akshat reading? Yes, ma'am. In the countryside, poor peasants and Artisans. Excuse me, ma'am. artisans began work. मैम it is written मैम moving to the countryside. तो मैम countryside में किधर move कर रहे हैं मतलब हम country में? गांव, के अंदर. villages. हाँ, हाँ. okay मैम. In countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their gathering their firewood, Wood, berries, vegetables, hay, and straw. straw had to now look for alternative sources of income. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant households eagerly agreed. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. Within this system, close relationship developed between the. Listen. Anything that requires explanation, class? No, ma'am. ठीक है, ये पैराग्राफ सही से समझ में आया ना? इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो, जब ये मर्चेंट्स जो थे, मैम इसका मतलब क्या है मैम? हाँ? एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक्विजिशन, एक्वायर, जब उन लोगों ने, हाँ, उन्होंने जब दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी के तौर पर एक्वायर कर लिया था, उन पे कब्जा कर लिया था। एक्विजिशन मतलब कब्जा करना होता है ना? यस मैम। हाँ, मैम यहाँ से बता दीजिए मैम, इसमें कहाँ से बताओ? मैम लाइन मैम आई एम टेलिंग मैम 8th line, ma'am. These were association of producers that trained craftspeople, maintain control over production. ठीक है, हमने कल उसके बारे में पढ़ा था, गिल्ड्स के बारे में। ये जो गिल्ड्स हुआ करती थी, ये गिल्ड्स जो है बहुत एक्सपर्ट जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जो अलग अलग ट्रेड में जिनका स्पेशलाइजेशन था, उन्होंने अपने आप को, आवाज है, ठीक है। हमने बताया था कि जो गिल्ड्स हुआ करती थी, ये उन लोगों की एसोसिएशंस थी जो एक पर्टिकुलर तरीके के काम में दक्षता रखते थे, एक्सपर्टाइज रखते थे।
ठीक है। अब ये एक्सपर्टाइज जो ग्रुप्स थे, इन्होंने किसी को भी, जो भाई ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इनकी मार्केट में मोनोपोली थी, तो ये किसी को अपने उस एरिया में आने नहीं देते थे, है ना। जब मोनोपोली होती है तो क्या होता है, इंसान अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे दूसरों को सामान देता है, ना कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे खरीदता है, ठीक है। तो मोनोपोली थी, इसलिए ये मर्चेंट्स जैसा काम चाहते थे वैसा इनको मिल नहीं पाया इनसे। तो जब इनको टाउन्स में जब इनकी दाल नहीं गली, तो इन्होंने क्या करा, ये कंट्री साइड की तरफ चले गए। इन्हें पता था कि जो कंट्री साइड है वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ये जो गिल्ड्स है, जो लोग गिल्ड्स वाले जो काम करते हैं वो काम वो भी जानते होंगे, पर केवल उनका एसेस नहीं है इन लोगों के पास तक, इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। तो ये लोग वहां पे गए, कंट्री साइड गए ये मर्चेंट्स, और इन्होंने वहां पे लोगों को हायर करना शुरू करा फॉर वर्किंग। अब जब उन्होंने वहां पे पहुंचे ये, तो जो वहां के जो पुअर पीजेंट्स थे या जो आर्टिजन्स थे, उन्होंने इन मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। रीजन बीइंग, उनको ये समझ में आया कि भाई हमारी खेती बाड़ी तो वैसे भी नहीं चल रही है। आप देखो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे जो है आपका जो वो था क्रॉप फेलियर, जो आपकी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, लोगों का जब बहुत ज्यादा शहरों की तरफ जाना हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फील्ड्स हुआ करती थी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हुआ करती थी, वो उन पे ज्यादा लोग काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्रॉप फेलियर हो जाता था। जो भी वेदर कंडीशंस हुआ करती थी उससे जो है क्रॉप सफिशिएंट क्रॉप जो है प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, तो लोग वैसे भी गरीबी में थे ये लोग। तो जब इनको मर्चेंट्स ने ऑफर यस दिया कि मैम। आप हमारे लिए काम करो, तो दे रेडिली अग्रीड टू दैट। अब जब इन्होंने ऐसा करा तो क्या हुआ कि घर के जितने भी लोग थे वो सब उन कामों में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि भाई घर के एक मेंबर को अगर कोई चीज आती है तो इसका मतलब वो सबको आती ही होगी, और अगर नहीं भी आती होगी तो छुटपुट छुटपुट काम सिखाई देता है इंसान, है ना, सिखा देता है, नहीं सिखा देता है। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसलिए जो है इन लोगों ने जब ये जो पीजेंट हाउस होल्ड वाले थे, इन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। और ये जो मर्चेंट्स थे देवर वेरी स्मार्ट, ये इन्हें पता था कि भाई ये लोग पुअर हैं, इनको मनी की रिक्वायरमेंट है, लाइवलीहुड के लिए इनको पैसा चाहिए, तो इनको बहुत अच्छे अच्छे पैसे भी देते थे ये लोग, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही पैसे इनको मिलते थे, भले ही अमाउंट कम होता था, बट फॉर देम दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। तो उन्हें लगा कि जब हमें एडवांस में काम करने से पहले काम पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना हम ज्यादा काम करें। तो इन्होंने धीरे धीरे ये लोग भी जो है इस उसमें उतर के आ गए कि ये लोग भी जो है काम करने लगे, ठीक है। मर्चेंट्स ने अपना, भाई जो मर्चेंट्स थे उनका अपना उल्लू सीधा हो गया, उनको जो काम चाहिए था वो उनको इनसे मिल गया, और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हो रहे थे, ठीक है। और फिर उनका जिससे करवाने का मन करता था वो उससे करते थे, मतलब ऐसा कोई बाउंड नहीं कर दिया था इन्होंने, मतलब ये लोग बाउंड नहीं थे कि भाई इनको इन्हीं से करवाना है। जहां पे उन्हें लगता था कि क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कम पैसे में ज्यादा काम हो पा रहा है उनका, तो ये लोग उनसे एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म कर ली, उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट में चले गए उनके साथ, या उनको ज्यादा पैसे दे दिए कि भाई आप हमें इतना बना के दो या इतना करके दो, ठीक है। तो ये जो कल्टीवेटर्स लेकिन थे, मैम, हाँ बेटा, लेकिन मैम तो मैम ये लोग मैम मना क्यों करते थे मैम? जैसे मैम टाउन में जैसे इसमें मैम दे रखा है मैम, कंट्रोल प्रोडक्शन होता था मैम, वहाँ पे मैम रेस्ट्रिक्टेड होते थे मैम नए पीपल आने का मैम। आप न्यू बिजनेस भाई में भाई अपना सीधी सी अपना बात है। बिजनेस नहीं शुरू कर मेरी सकते थे। मेरी देखो, मेरी किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी, मेरी कोई दुकान है, मेरी उस दुकान का बहुत सामान बिकता है, और मेरी पूरे एरिया में इलाके में एक ही दुकान है, तो मेरी मोनोपोली हुई, मैं किसी दूसरे को क्यों आने दूंगी वहां पे। मेरी अपनी एसोसिएशन है, हम अपने एसोसिएशन वालों से बोलूंगी भैया ये तो गलत बात है, हमारा पूरा का पूरा रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारा जो है ग्राहक बढ़ जाएगा। तो इनको भी यही चीज लगती थी कि भाई मर्चेंट्स के लिए, अगर मर्चेंट दूसरे नए मर्चेंट्स अगर आ जाएंगे तो वो हमारा काम ले लेंगे सब, इस वजह से ऐसा था, राइट। यस, तो मैम मर्चेंट्स ने ही रोक Yes. रखा था मैम नए मर्चेंट्स को आने से। हाँ, वो जो गिल्ड्स वाले थे, उन्होंने नए मर्चेंट्स को जो है आने से मना कर दिया था। उनको उनके लिए वो किसी चीज के लिए काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनकी मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। उन्हें ये बात ही बता दी कि भाई ये मर्चेंट ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि ये तो जगह जगह जाके अपना सामान बेचेगा, ट्रेड करेगा, ठीक। अक्षत ओके क्या मैम। बोल रहे हो?